السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز ناظرین، آج کا جو پروگرام ہے وہ علم الاعداد کے بارے میں ہے۔ علم الاعداد جو ہے یہ باقی علوم کی طرح ایک قابل قدر علم ہے اور لائق احترام ہے۔ علم الاعداد سے عقل میں پختگی اور شعور و آگہی میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ علم الاعداد راز فطرت سے پردے اٹھا کر انسان کو مخفی اور پوشیدہ قوتوں سے وقت سے پہلے آگاہ کرتا ہے، جو کہ عمومی طور پر انسان کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں۔ اللہ کے بے شمار بندے اس علم کی وسعتوں سے فیضیاب ہو رہے ہیں، اور ماضی میں بھی اولیاء کاملین اور بزرگان دین نے اس علم کی مدد سے لوگوں کی مشکلات میں آسانیاں پیدا کی، مسائل کا حل ڈھونڈا اور لوگوں کو اس سے فیض یاب کیا۔ یہ اللہ کے جو سربستہ راز ہیں اور علوم الہیہ ہیں، ان میں سے ایک علم ہے علم الاعداد۔ اس کی بلندیوں اور اس کی گہرائیوں سے ایک ہی آواز سنائی دیتی ہے، اور وہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو علم الاعداد بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اعداد کا تعلق فطرت سے بھی ہے، قدرت سے بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا یہ عکس بھی ہے، جو اس کی قدرت کاملہ سے انسانوں کو فیضیاب کرتا ہے۔ اس میں انسان کی محنت، انسان جتنا اس میں غور و فکر کرتا ہے اس پر پردے واہ ہوتے چلے جاتے ہیں، اور وہ اللہ کی قدرت پر عش عش کر اٹھتا ہے۔ قرآن حکیم میں فرمایا گیا کہ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، کہ ہر چیز کو اللہ کریم نے اعداد کے دائرے میں سمیٹ کر رکھا ہے، گن کر رکھا ہے۔ تو اعداد جو ہے ان کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور ان میں جو بعض دفعہ مقررات استعمال ہوتے ہیں ان میں بھی بہت بڑا راز چھپے ہوتے ہیں، کہ ایک ہی عدد جو بار بار مکرر طور پہ آتا ہے وہ کس طرف اشارہ کرتا ہے۔ جس طرح اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اپنی قدرت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون۔ کہیں پر اپنی تخلیقات کے بارے میں فرماتا ہے، قدرت کاملہ کے بارے میں فرماتا ہے، اپنے علوم کے بارے میں کہ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، ان فی ذالک لآیات لقوم یعملون، کہ فکر کرنے والوں کے لیے بھی نشانیاں ہیں، عمل کرنے والوں کے لیے بھی اس میں نشانیاں ہیں۔ اب اللہ کریم نے دیکھیں کہ
इस कायनात को पैदा फरमाया तो 7 आसमान बनाए, 7 आसमानों के साथ 7 जमीनें भी बनाई, फिर 7 जमीनों के साथ इस कायनात में 7 सैयारे भी बनाए, और इन सैयारों से निज़ाम कुदरत के मज़ाहिर ज़ाहिर होते हैं। फिर इसी तरह कुरान करीम की 7 मनाजिल हैं। फिर इसी तरह सूरतुल फातिहा, जिसे उम्मुल कुरान कहते हैं, उसकी भी 7 आयात हैं, जिसे सबआ मसानी कहते हैं। कुरान करीम की जो क़िरात हैं वो भी 7 हैं, 7 क़िरात में पढ़ा जाता है जो मारूफ हैं। तो ये जो 7 का अदद है, ये बड़ा हैरान कुन है, और अकल दंग रह जाती है जब बंदा गौर व फिक्र करता है। और इस इल्म में जितना गौता जन होता है, उतना ही उस पर फितरत के राज आश्कार होते चले जाते हैं। ये तो इब्तदाइया था जिसकी तरफ मैंने इशारा किया। हाँ, ज़िम्नन अर्ज कर दूं कि इसी तरह कुछ चीज़ें कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन पीर का दिन, पहली वही जब नाजिल हुई आप पर, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पीर का दिन। जब आपने हिजरत का कस्द फरमाया, पीर का दिन। यहाँ तक कि जब आपका विसाल हुआ तो वो भी पीर का दिन। ये इत्तफाकात नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से इशारे हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। अरबाब इल्म और दीन तो आजकल हमारे यहाँ हैं, बदकिस्मती से बहुत कम इस पर तवज्जो दी गई और इन पर गौर व फिक्र ही नहीं किया गया, बल्कि जिन बुजुर्गों ने इस पर कोशिश की उन पर फतवे लगाए गए और अपना काम पूरा कर दिया गया फतवा लगा के, ये तो शिरक है, बिदत है। तो अल्लाह करीम हमें महफूज फरमाए। बात लंबी हो जाएगी, इस पर तो घंटों बोला जा सकता है, लेकिन हमने चलना है अपने सबक की तरफ। तो हम जानेंगे कि आदाद के हवाले से आज हम जो अय्याम है, फारसी अय्याम और अरबी अय्याम, उनके बारे में हम जानेंगे। इब्तदाई तौर पर पिछले प्रोग्रामों में आप आदाद के हवाले से अबजद कमरी, अस्माउल हुस्ना और मुख्तलिफ जो जफ़र के हवाले से प्रोग्राम थे, उनमें आप मुलाज़ा कर चुके हैं। तो आइए हम आज के प्रोग्राम की तरफ बाकायदा उसका आगाज़ करते हैं। जी, तो बोर्ड की तरफ आते हैं। सबसे पहले आदाद अय्याम फारसी, ये हम देखेंगे। उर्दू अय्याम जिस तरह इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमरात, जुमा और हफ्ता। इतवार को फारसी में कहते हैं यकशंबा, और इसके आदाद जो हैं वो 387 हैं, 387। इसी तरह पीर, इसको फारसी में दो शंबा कहते हैं, दो शंबा, और इसके आदाद 367 हैं, 367। उसके बाद मंगल आ गया, ट्यूसडे, इसको फारसी में सहशंबा कहते हैं, और इसके आदाद हैं 422, 422। आगे बुध आ गया, बुध को चार शंबा कहते हैं, इसके आदाद 566 हैं, 566। फिर जुमरात, थर्सडे, इसको पंच शंबा कहते हैं, इसके आदाद 412 हैं, 412। फिर जुमा आ गया,
जुमा को जुमा ही कहते हैं फारसी में भी, और इसके आदाद जो है वो 118 है। फिर हफ्ता आ गया, हफ्ते को शंबा बोलते हैं, शंबा, और इसके आदाद हैं 357, 357। आगे चलते हैं आदाद अय्याम अरबी। अरबी में जो इसी तरह तरतीब वही एतवार से शुरू होगी। एतवार को अरबी में कहते हैं यौमुल अहद। यौमुल अहद के आदाद 100 हैं, 100। 100 को अरबी में मियतुन कहते हैं। तो 100 हो गए इसके आदाद। आगे है यौमुस्सानी। पीर को कहते हैं यौमुस्सानी। यौमुस्सानी के आदाद है 698, 698, 698। आगे यौमुस्सलास। यौमुस्सलास से मुराद मंगल का दिन, तीसरा दिन। इसके आदाद है 1118, 1118। आगे यौमुल अरबा, बुध का दिन। इसके आदाद 365 है, 365। आगे यौमुल खमीस है, उर्दू में इसको जुमरात कहते हैं और फारसी में पंचशंबा कहते हैं। अरबी में यौमुल खमीस कहते हैं, यानी कि पांचवा दिन। इसके आदाद है 797, 797। आगे यौमुल जुमा, इसके आदाद 205 हैं, 205। आगे यौमुस सब्त, ये हफ्ते को कहते हैं, हफ्ता शंबा, इधर अरबी में इसको यौमुस सब्त कहते हैं, सातवां दिन। 549, 549। एक चीज ज़हन में रहे कि इन आदाद में यौम के अदद भी साथ शामिल हैं, क्योंकि अरबी में जब दिन को पुकारा जाता है तो यौम साथ लगाया जाता है कि पीर को यौमुल अहद, अतवार को यौमुल अहद सॉरी, और पीर को यौम सानी, मंगल को यौम सलात। तो इसी तरह यौम का लफ्ज जो है ना वो साथ शामिल होता है। ये तो आज हमने इल्मुल आदाद के बारे में जाना कि इल्मुल आदाद है क्या और ये कैसे काम करता है। इसके बारे में हम इंशाअल्लाह जब हम जफरी हवाले से या इल्मुल हुरूफ या इल्मुल आदाद के हवाले से पढ़ेंगे, मुख्तलिफ सवालात को जब हम हल करना सीखेंगे, मुख्तलिफ सवालों के जवाब निकालना जब हम सीखेंगे, तो उसमें ये फिर ये चीज़ें जो है ना ये बहुत काम आएंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। इंशाअल्लाह अभी इसके बाद जो बाकी प्रोग्राम है वो भी काफ़ी इंशाअल्लाह मुफीद होंगे। अगला प्रोग्राम जो है हमारा इंशाअल्लाह वो इल्मुल आदाद की अहमियत के बारे में वो बताएंगे कि इसकी अहमियत कितनी है। तो उम्मीद है आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो करम फरमा वो दोस्त इसको सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ है कि अल्लाह करीम हम सब पर अपना ख़ास फजल करम फरमाए, सब लोगों की मुश्किलात दूर फरमाए, आसानियाँ अता फरमाए और सबको आसानियाँ बांटने का शरफ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।